नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे। हमने चर्चा किया था ब्रह्मा जी के विषय में, उसके बाद नारद मुनि के विषय में, व्यास देव के विषय में, और उसके बाद हमने चर्चा की थी मध्वाचार्य के विषय में। आज से हम नेक्स्ट जो आचार्य हैं, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आ, बीज कहे जाते हैं, वो है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। तो आज हम माधवेंद्र पुरी के विषय में सुनेंगे। तो अभिषेक को आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। Yes, Prabhu, I'm sharing. यस। तो एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। Yes, Prabhu. Prabhu. मैं स्टार्ट करूँ क्या प्रभु? हाँ, आप शुरू करिए। Sri Madhvendra Puri. That deity was known widely as Sri Chaitanya Mahaprabhu told his devotees the story of how the deity became so. Deity had stolen a pot of sweet rice for Madhvendra Puri. Therefore, he became very famous as the Lord who stole the uh, sweet rice. Once Madhvendra traveled to हरे कृष्णा, आपका शायद नेटवर्क ठीक नहीं है क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। where he came upon the hill known as Govardhan. Madhvendra Puri was almost mad in his ecstasy of love of Godhead, and he did not know whether it was day or night. अच्छा, हाँ, क्या अप्रोच कोई और कंटिन्यू कर ले तो ठीक रहेगा, या शायद नेटवर्क का कुछ हो सकता है प्रॉब्लम। ओके, कोई और पढ़ेंगे? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, अभी ठीक है क्या आवाज? हाँ, बेटर है। हरे कृष्णा, आप पढ़ रहे हैं? कौन और पढ़ेगा? यस प्रभु, कोई और कंटिन्यू कर लो, ठीक रहेगा। आवाज का बोल रहे थे। हाँ, आशुतोष आप पढ़िए। जी प्रभु, थोड़ा स्क्रीन पे। श्री माधवेंद्रपुरी प्रभु, शुरू से ना। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु फ्रॉम स्टार्टिंग ना। यस, हरे जितने कृष्णा। पूछने में लगा रहे होते हैं तो पढ़ लिया होता। नहीं प्रभु, वो आए थे जो सीटी वे सीटी कॉलेज से, तो उस तरह का। हाँ, पढ़ा है। करिए, पढ़िए।
That deity was known widely as Kshirachora Gopinath, and Chaitanya Mahaprabhu told his devotees the story of how the deity became so famous. Formerly, the deity had stolen a pot of sweet rice for Madhavendra Puri. Therefore, he became very famous as the Lord who stole the sweet rice. Once Sri Madhavendra Puri traveled to Vrindavana, where he came upon the hill known as Govardhan. Madhavendra Puri was almost mad in his ecstasy of love of Godhead, and he did not know whether it was day or night. Sometimes he stood up, and sometimes he fell to the ground. He could not discriminate whether he was in proper place or not. After circumambulating the hill, Madhavendra Puri went to Govindakunda and took his bath. He then sat beneath a tree to take his evening rest. While he was sitting beneath a tree, an unknown cowherd boy came with a pot of milk, placed it before Madhavendra Puri, and smiling addressed him as follows: "O Madhavendra Puri, please drink the milk I have brought. Why don't you bake some food to eat? What kind of meditation are you undergoing?" When he saw the beauty of that boy, Madhavendra Puri became so very satisfied. Hearing his sweet words, he forgot all hunger and thirst. Madhavendra Puri said, "Who are you? Where do you reside? And how did you know that I was fasting?" The boy replied, "Sir, I am a cowherd boy, and I reside in this village. In my village, no one fasts. In this village, a person can bake food from others and thus eat. Some people drink only milk, but if a person does not ask anyone for food, I supply him all his eatables. The women who come here to take water saw you, and they supplied me with this milk and sent me to you." The boy continued, "I must go very soon to milk the cows, but I shall return and take back the milk pot from you." Saying this, the boy left the place. Indeed, he suddenly could be seen no more, and Madhavendra Puri's heart was filled with wonder. After drinking the milk, Madhavendra Puri washed the pot and put it aside. He looked toward the path, but the boy never returned. Madhavendra Puri could not sleep. He sat and chanted the Hare Krishna Mahamantra, and at the end of the night he dozed a little, and his external activities stopped. In a dream, Madhavendra Puri saw that very same boy. The boy came before him and, holding his hand, took him to a bush in the jungle. The boy showed Madhavendra Puri the bush and said, "I reside in this bush, and because of this I suffer very much from severe cold, rain showers, winds, and scorching heat. Please bring the people of the village and get them to take me out of this bush. Then have them situate me nicely on top of the hill. Please construct a temple on top of that hill." The boy continued, "and install me in that temple. After this, wash me with large quantities of cold water, so that my body may be cleansed. For many days I have been observing you, and I have been wondering, when will Madhavendra Puri come here to serve me? I have accepted your service due to your ecstatic love for me. Thus I shall appear, and by my audience all fallen soul will be." प्रभु थोड़ा ऊपर कीजिए थोड़ा. "Thus I shall appear, and by my audience all fallen souls will be delivered. My name is Gopala. I am the lictor of Govardhan Hill. I was installed by Bajra, and here I am the authority. When the Muslims attacked, the priest who was serving me hid me in this bush in the jungle. Then he ran away out of fear of the attack. Since the priest went away, I have been staying in this bush. It is very good that you have come here. Now just remove me with care." After saying this, the boy disappeared. Then Madhavendra Puri woke up and began to consider his dream. Madhavendra Puri began to lament, "I saw Lord Krishna directly, but I could not recognize him." Thus he fell down on the ground in ecstatic love. Madhavendra Puri cried for some time, but then he fixed his mind on executing the order of Gopala. Thus he became tranquil. After, take, After taking his morning bath, Madhavendra Puri entered the village
and assembled all the people. Then he spoke as follows. The proprietor of this village, Govardhanadhari, is lying in the bushes. Let us go there and rescue him from that place. The bushes are very dense and we will not be able to enter the jungle. Therefore, take choppers and spades to clear the way. After hearing this, all the people accompanied Madhavendra Puri with great pleasure. According to his directions, they cut down bushes, cleared a path, and entered the jungle. When they saw the deity covered with dirt and grass, they were all struck with wonder and pleasure. After they had cleansed the body of the deity, some of them said, the deity is very heavy. No single person can move him. Since the deity was very heavy, some of the stronger men assembled to carry him to the top of the hill. Madhavendra Puri also went there. A big stone was made into a throne, and the deity was installed upon it. Another big stone was placed behind the deity for support. All the Brahmana all the Brahmana priests of the village gathered together with 9 water pots, and water from Govinda Kunda lake was brought there and filtered. When the deity was being installed, 900 pots of water were brought from the Govinda Kunda. There were musical sounds of bangals and drums, and the singing of women. During the festival at the installation ceremony, some people sang and some danced. All the milk, yogurt, and clarified water in the village was brought into the festival. Various foods and sweetmeats, as well as other kinds of presentation, were brought there. I am unable to describe all this. The villagers bought a large quantity of tulsi leaves, flowers, and various kinds of garments. Then Sri Madhavendra Puri personally began the Abhishek wedding ceremony. After all inauspicious things were driven away by the chanting of the mantra, the deity's bathing ceremony started. First, the deity was massaged with a large quantity of oil so that his body became very glossy. After the first wedding, further weddings were conducted with Panchagavya and then with Panchamrita. Then the Mahasnana was performed with ghee and water, which had been brought in 100 pots. After the Mahasnana were finished, the deity was again massaged with scented oil and his body made glossy. Then the last bathing ceremony was performed with scented water kept within a conch shell. After the body of the deity was cleansed, he was dressed very nicely with new garments. Then sandalwood pulp, tulsi garlands, and other fragments, flowers, garlands were placed upon the body of the deity. हरे कृष्ण। रुकिए, तो अभिषेक ब्रो मुझे थोड़ा होस्ट बना दीजिए। हरि बोल। यस। यस प्रभु बना दीजिए। ओके, तो ये जो स्टोरी चल रही है किसकी चल रही है? ये चल रही है माधवेंद्र पुरी, है ना? तो ये है माधवेंद्र पुरी। कई जगह पे आपने इनकी फोटोज देखी होगी। और इस तरीके से यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, इनको गोवर्धन के ऊपर स्थापित किया गया। इस विग्रह का नाम क्या है? गोपाल जी। और गोपाल जी दिखने में कैसे हैं तो हम सब जानते हैं, श्रीनाथ जी। यही वो ओरिजिनल गोपाल विग्रह हैं जो माधवेंद्रपुरी को प्राप्त हुए थे। एक बार हमने बेस में भी इनके विषय में क्लास करी थी, है ना? तो ये स्टोरी है, ये कौन किसको नरेट कर रहा है? ये स्टोरी कौन किसको नरेट कर रहा है? तो एम प्रभु, संग्राम प्रभु।
ये कौन स्टोरी बता रहा है और किसको बता रहा है? ये नरेट कौन कर रहा है? आई मीन हु इज नरेटिंग द स्टोरी? कौन नरेट कर रहा है, किसको नरेट कर रहा है, और किसके विषय में बता रहा है? महाप्रभु नरेट कर रहे हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, और किसके सामने नरेट कर रहे हैं? वो वाला मिस कर गया। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जब वेस्ट बंगाल से जगन्नाथपुरी के लिए आ रहे हैं, तो उस समय वो रास्ते में रेमुणा नामक स्थान पर रुके। स्वयं प्रभु का घर वहीं पे है, बालेश्वर के पास, तो जहाँ पे खीर चोरा गोपीनाथ जी हैं। तो इनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ कैसे पड़ा, ये प्रसंग सुनाने से पहले, मतलब ये प्रसंग सुना रहे हैं एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु। किसको? चैतन्य महाप्रभु आए थे नित्यानंद प्रभु के साथ, मुकुंद के साथ, ऐसे करके 4-5 भक्त लोग आए थे टोटल, गदाधर पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एंड पार्टी को ये स्टोरी सुना रहे हैं, है ना, खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर की। उस दिन वो रात को खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में रुके, और उन्होंने पूरी ये लीला डिस्कस करी, है ना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर कौन कौन गया है आप में से? मैं गया हूँ प्रभु। अरे आप तो वहीं रहते हो। जी प्रभु। ये खीर चोरा प्रभु क्या गोपीनाथ, यही सेम डिटीज इस्कॉन चौपाटी में भी हैं? जी जी जी, श्रीनाथ जी, ये वही श्रीनाथ जी का विग्रह है जो चौपाटी में भी इंस्टॉल किया गया, सेम विग्रह। तो ये श्रीनाथ जी, ये खीर चोरा गोपीनाथ जी का टेम्पल है ना। अभिषेक को याद है अपन लोग गए थे, हाँ यस प्रभु जी, है ना। बढ़िया खीर थी। हाँ, और माधवेंद्र पुरी की समाधि भी वहीं पे है, खीर चोरा गोपीनाथ, ये रहा, ये खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में समाधि ऑफ श्री माधवेंद्र पुरी। और भी ये स्थान रेमुणा एक किस और फेमस है, किसके लिए? यहाँ पे और कौन, किस भक्त का घर था? हम गए नहीं थे, लेकिन वहाँ लिखा हुआ था, हम जा सकते थे, मेरे थोड़ा। तो ये स्थान बलदेव विद्याभूषण का घर भी यही खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर के पास में ही है। किसका? बलदेव विद्याभूषण, है ना। मैं दिखा देता हूँ। ओम ओम लीला बलदेव विद्याभूषण रेमुना, देख सकते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण was born in early part of 18th century in the village near रेमुणा, बालेश्वर। ये है बलदेव विद्याभूषण ना। पेंटिंग तो आप लोगों ने देखी होगी। तो इनका भी जन्म स्थान रेमुणा बालेश्वर है। वही कीर्चरा गोपीनाथ के पास में ही है वो स्थान। तो चैतन्य चरितामृत में आता है पूरा प्रसंग, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त प्रसंग पढ़ रहे हैं, ये चैतन्य चरितामृत में एक्चुअली आता है। कौन सा चैप्टर किसी को पता है? उस चैप्टर का नाम है द एक्टिविटीज ऑफ श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। दिखा रहा हूं आप लोगों को, दिखाने का पर्पस बहुत क्लियर है, ताकि याद रह जाए कि हमने अब जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे आचार्यों की फोटो दिखाएं, तो आपको याद रहना चाहिए ना कि किसकी फोटो दिखाई जा रही है। ये चैप्टर 4 ऑफ मध्य लीला, ठीक है, देख सकते हैं, श्री माधवेंद्र पुरी डिवोशनल सर्विस।
तो यहाँ पे जो अभी हम पढ़ रहे हैं पूरा प्रसंग यहाँ पे चर्चा किया गया है। वन नाइट वाइल इन गोवर्धन माधवेंद्रपुरी ड्रीम दैट गोपाल डिटी वाज विद इन द फॉरेस्ट, है ना। ये गोपाल डिटी को कैसे उनने निकाला, फिर उसके बाद किस प्रकार से उनकी सेवा पूजा करी गई, ये पूरा प्रसंग अभी हम पढ़ रहे हैं इस तरीके से। तो ये चैतन्य चेतामृत में पूरा ये मिलता है। नेट बहुत कमजोर हो रहा है। एनीवे, आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेइसेंसेस ऑन टू माधवेंद्र पुरी हु was given a pot of sweet rice stolen by Shri Gopinath, celebrated thereafter as Kheer Chora. Being pleased by Madhavendra Puri's love, Shri Gopal, the deity at Govardhan, appeared to the public vision. Yasmin datum chorayam kheer bhandam गोपीनाथ क्षीर चोराब्धियो अद्भुत अभूत श्री गोपाला प्रादुरासित वशासन यत् प्रेमना तम माधवेंद्रम नतोस्मि। तो जिनके प्रेम के कारण गोपाल जी का आविर्भाव हुआ, प्रदुर प्रदुरासित प्रादुरासित प्रादुर्भाव हुआ, जिनके प्रेम के वशीभूत होकर के जिन माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई, हम उनको नमस्कार करते हैं। तो ये है आज हमारा चर्चा का प्रसंग। हम माधवेंद्रपुरी के विषय में पढ़ रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी किस स्थान पे रुके हुए थे जहां से ये लीला शुरू हुई? ये लीला का एग्जैक्टली स्थान कहाँ है, कौन बताएगा? लीला का स्थान कहाँ पे हुआ था ये घटना? यस, कोई बता नहीं रहा। ये लीला कहाँ पे हुई थी? रेमुणा प्रभु, रेमुणा वाला सर। नहीं, खीरचोरा गोपीनाथ की लीला रेमुणा में हुई थी। लेकिन गोपाल जी का विग्रह जो खोजा गया, गोपाल जी स्वप्न में आए, उस समय माधवेंद्रपुरी कहाँ पे थे? वो तो प्रभु जी वृंदावन में ही है ना प्रभु जी। वृंदावन में है। वृंदावन में वो स्थान कौन सा है सर? उस जगह का नाम है गोविंद कुंड। आप में से कितने लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा करी है? आप जब गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो आप गोविंद कुंड नामक स्थान पे जाएंगे। वो वहां पे आप देखेंगे कि माधवेंद्रपुरी की भजन स्थली आज भी है। अगर यहाँ दिख जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। गोविंद कुंड पे बैठ करके माधवेंद्रपुरी भजन करते थे। जिस स्थान पे ये लीला हुई थी कि माधवेंद्रपुरी बैठे हुए थे और उनकी अयाचक वृत्ति थी। अयाचक वृत्ति का अर्थ होता है कि वो किसी को कुछ मांगते नहीं थे। अगर कोई अपनी प्रेरणा से खुद ही लाके देता था तो वो स्वीकार करते थे, नहीं तो स्वीकार नहीं करते थे, है ना। अगर दिख जाए तो बहुत अच्छा है। ये इस प्रकार की भजन कुटी आज बनी हुई है गोविंद कुंड में। ये आप देख सकते हैं, इस तरह लिखा हुआ है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी भजन कुटीर। तो ये वाली इस तरीके से बनी हुई है आज भी अ, गोविंद कुंड में। तो गोविंद कुंड के पास की ये लीला है। तो आप जब गोवर्धन परिक्रमा में जाएंगे तो आपको ये गोविंद कुंड का भी दर्शन होगा
ये माधवेंद्रपुरी की भजन कुटी का भी दर्शन होगा, और फिर भक्त लोग आपको वहां बैठ के लीला सुनाएंगे, जहाँ इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी बैठे हुए थे और एक गोपाल बालक आकर के उनको दूध का भांड देते हैं, और फिर ये पूरी लीला शुरू होती है। ठीक है। उसी के आगे है एक संकर्षण कुंड। संकर्षण कुंड के पास में आज भी आप देखेंगे तो लिखा हुआ है वो श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली। जब आप परिक्रमा करने जाएंगे तो संकर्षण कुंड गोवर्धन, तो ये संकर्षण कुंड है। और यहीं पे एक ऐसा एक बोर्ड में लिखा हुआ है कि ये है श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली, गोवर्धन के पास में। संकर्षण कुंड आप देख सकते हैं, पूरे शंकर भगवान संकर्षण इस प्रकार विराजमान है वहां पे। तो उसी के पास में इस तरह से गेट बनाया गया है, ये काफी डेवलप कर दिया गया है। इस तरीके से ये जो गेट देख रहे हैं बनाया गया है, इसको हम देखते हैं श्री नाथ जी की प्राकट्य स्थली। अब ऐसे तो यहाँ नहीं समझ आ रहा, लेकिन ऐसे संकर्षण कुंड के पास में वो स्थान है जहाँ पे श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे। ठीक है। तो यही श्रीनाथ जी फिर आगे वल्लभाचार्य के मूल जो है विग्रह बने, जिनकी सेवा पूजा वो किया करते थे। उनकी परंपरा में आज भी श्रीनाथ जी, आप में से कोई गया है श्रीनाथ जी नाथ द्वारा? ये नाथ द्वारा मंदिर है जहाँ पे श्रीनाथ जी की हवेली भी कहते हैं इसको। यहाँ पे श्रीनाथ जी आज उनकी बड़ी धूमधाम से सेवा पूजा होती है इस तरीके से। तो ये विग्रह एक्चुअली माधवेंद्रपुरी के लिए प्रकट हुए थे, और इन्होंने मंगाया था चंदन, मेरे लिए चंदन लेकर के आओ, वो भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में माधवेंद्रपुरी उड़ीसा आए थे चंदन लेने के लिए। तो यस, आगे पढ़ते हैं अपन पहले, फिर आगे पहुंचेंगे। कहाँ तक पढ़े थे? पढ़िए, कौन पढ़ेगा? कहाँ गए आशुतोष जी? कौन पढ़ रहा था? कहाँ तक पढ़े थे आप? After wedding ceremony was finished, incense and lamps were burned and all kinds of food offered before the deity. These foods included yogurt, milk, and as many sweetmeats as were received. The deity was first offered many varieties of food, then sent in drinking water in new pots, and then water for washing the mouth. Finally, pan mixed with a variety of spices was offered. After the last offering of tambula and pan bhoga aratika was performed, finally everyone offered various prayers and then obeisances, falling flat before the deity in full surrender. As soon as the people of the village had understood that the deity was going to be installed, they had brought their entire stocks of rice, da- dal, and wheat flour. They brought such large quantities that the entire surface of the top of the hill was filled. When the villagers brought their stock of rice, dal, and flour, the potters of the village brought all kinds of cooking pots. And in the morning, the cooking began. 10 brahmanas cooked the food grains, and 5 brahmanas cooked both dry and liquid vegetables. The vegetable preparations were made from various kinds of spinach, roots, and fruits collected from the forest. And some had made bada and badi by smashing dal. In this way, the brahmanas prepared all kinds of food. 5 to 7 men had prepared a huge quantity of chapatis, which were sufficiently covered with ghee, clarified butter, as were all the. ध्यान रखिएगा, सफिशिएंटली कवर्ड विद घी, है ना। चपातीज वर सफिशिएंटली कवर्ड विद घी, कंजूसी से कवर नहीं किया गया था, सफिशिएंटली।
और वेजिटेबल राइस और दाल में जब घी डाला गया था। All the cooked rice was stacked on pallas leaves, which were on new cloths spread over the ground. Around the stack of cooked rice were stacks of chapatis, and all the vegetables and liquid vegetable preparations were placed in different pots and put around them. Pots of yogurt, milk, buttermilk, and sikharini, sweet rice, cream, and solid cream were placed alongside the vegetables. In this way, the arati, Annakuta अन्नकूट Annakuta सेरेमनी ceremony was performed, and Madhavendra Puri Goswami personally offered everything to Gopal. Many water pots were filled with scented water for drinking, and Lord Sri Gopal, ये आप लोगों को पता है कि कैसे भगवान को भोग लगती है? तो आप में से कितने लोग भोग आरती जानते हैं? सुना है कभी भोग आरती? किसी ने सुना है भोग आरती? सुना है प्रभु जानते नहीं, है? सुना है पर जानते नहीं। बहुत सारे भोग लगाए जाते हैं भगवान को। किस तरह की होती है देखें। Arjan Bhakata Salam Shri Gaura Hari Arjan Bhakata Salam Shri Gaura Hari Shri Gaura Hari Sohi Gaura Bihari Shri Gaura Hari Sohi Gaura Bihari Jashtamati Chitari Nanda Jashtamati Chitari Veda Damadara Aisha Ekana Veda Kara ho jana अगर देख के आप लोगों देश पैसे की धारी Aladeva Saka Baise Sari Sari Shakani Bhaji Nalita Kushma Da Alidan Kachumi Adhimachaka Da Abhagama Shabada Ratika Vita Ashtaka Kir Puri Payasam Karpuram Rita Ke Ramba Kira Sada Salam Gada Shabraka
राम सारपुरी राधुला सवारी भजन करे न कृष्ण होय कुतूहली राधिकार पकान विविध व्यंजना कृष्ण करे न भजना लाले बाले लचुकाए श्री मधु मंगला आगल भजन यार दे हरि बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय बोल हरि बोल काली गान हेरी नायन खोने हरि काली गान हेरी इतना होए खाए कृष्ण जशोदा भवानी भोजन प्रिय कृष्ण सुभाषिता बारी राधे मुख प्रकलय सारी सारी असम का प्रकलिया जत सख गाने अनंत विश्राम करे बाला देवसाने मसाला ने चंबुला मसाला के कृष्ण चंद्र सुखे निद्रा गेला विशाल काशिकी पुचा चमरा दुनाया अपूर्वाचयाने कृष्ण सुखे निद्रा जाया Yashomati Yakyape Dhanisho Anito Krishna Prasada Radha Kunje Hoyo Prito Alitari Sakhi Gana Avashesha Paya मन माने सुख राधा कृष्ण गुण गाया हरि लीला एकमात्र जार प्रमादा भक्ति विधाय ठाकुर भक्ति विनोदा अज भक्त वत्सल श्री गुरु हरि हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इतनी वैरायटी हाँ प्रभु जी कब बोला जाता है ये आरती? हैं ये आरती कब बोला जाता है प्रभु जी, मतलब कौन सा भोग थी? भोग राजभोग के समय, राजभोग के समय जब मंदिर ऑल्टर बंद रहता है, जब भोग लग रहा होता है तो बाहर में ये आरती गाते हैं, और जब ऑल्टर खुलता है तो दूसरी आरती गाते हैं। कौन सी गाते हैं, किसी को पता है? आफ्टरनून में, इसको में अच्छा, जब जब राजभोग के समय ऑल्टर बंद रहता है तो ये आरती गाते हैं, और जब राजभोग आरती के लिए खुलता है ऑल्टर तो दूसरी आरती गाते हैं, उस समय ये गाते हैं।
যশোমতি নন্দন ব্রজ বর নাগর যশোমতি নন্দন ব্রজ বর নাগর গোকুল রঞ্জন तो ये वाली आरती गाते हैं जब मतलब राजभोग आरती जब होती है, और जब राजभोग ऑफरिंग होती है तो गाते हैं मंदिर में भज भकत वत्सल श्री गौर हरि। ये भगवान का स्टैंडर्ड ऑफरिंग की जाती है। तो यही यही लीला एक्चुअली ये सब स्टैंडर्ड ऑफरिंग की प्रथा एक्चुअली माधवेंद्रपुरी के से चली है। माधवेंद्रपुरी के शिक्षा अनुसार इस प्रकार से इलेबोरेट तरीके से डीटी वर्शिप, इलेबोरेट तरीके से भोगा ऑफरिंग, जिस प्रकार से अभिषेक हुआ है ना, तो किस प्रकार से उनको पूरी बॉडी को पहले ऑयल लगाया गया, फिर उसके बाद किस प्रकार से उनको दूध और दही मतलब पंचगव्य और पंचामृत से उनका अभिषेक किया गया है ना। पंचगव्य क्या होता है, हम बताएगा पंचगव्य। रूपा जी लिखे वहां पर पट में पंचगव्य क्या होता है। पंचगव्य रूपा जी इसी प्रसंग में कहीं पंचगव्य लिखे हैं, क्या होता है पंचगव्य, कौन बताएगा। गाय गाय से जो मिलते हैं प्रभु जी, क्या क्या मिलता है, 5 चीजें क्या मिलती गाय से। गोबर और गोमूत्र और दही और क्या प्रभु जी, पंचामृत क्या होता है और पंचगव्य क्या होता है, जो बताएगा इनाम पाएगा। प्रभु जी जो पंचगव्य वो जो रहता है, पंच वो जो पंचामृत में शायद ये आता है यूरिन का काव मतलब नहीं मिल्क ये कर्ड। नहीं नहीं, पंचामृत में क्या आता है, पंचगव्य में क्या आता है। प्रभु जी पंचामृत में ये आता है, गुड़ आता है, महू आता है हाँ, और पंचामृत में आता है 5 चीजें। कौन कौन सी 5 चीजें। गुड़, महू और खीर आता है शायद प्रभु जी, और दही। हाँ, पंचामृत पर नोट कर सकते हैं आप लोग, ये ध्यान रखना चाहिए है ना। पंचामृत में क्या आता है और पंचगव्य में क्या आता है, तो इनसे क्या होता है, मतलब भगवान का अभिषेक होता है। तो पंचामृत में आता है मिल्क, एक पंचामृत की बात कर रहा हूँ। साथ में डालते हैं घी, साथ में डालते हैं हनी, साथ में डालते हैं शुगर ऑब्लिक जैगरी और कर्ड। ये हो गया पंचामृत, ठीक है। और उसके बाद में पंचगव्य में क्या क्या आता है, पंचगव्य यानी गाय से मिलने वाली 5 चीजें कौन कौन सी होती है वो, मिल्क, काउ डंग, काउ यूरिन, अब मेरे को याद नहीं है, शायद कर्ड एंड घी भी इसी, कर्ड एंड घी प्रभु जी। कर्ड एंड घी ना, यस प्रभु जी। कर्ड एंड घी, ये तो डायरेक्टली नहीं मिलता लेकिन उसी गाय का ही प्रोडक्ट। तो पंचगव्य, इसमें 3 चीज तो कॉमन ही होगी दोनों में, बस केवल
तो ये लिखा गया एक्चुअली पंचामृत श्लोक का नंबर प्रभुपाद जी लिखे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। ये अभिषेक के प्रसंग में आता है। अन्नकूट सेरेमनी हुई, एक मिनट, वो यही है मध्य लीला के चैप्टर 4 में, टेक्स्ट नंबर मेरे पास एक्चुअली पॉकेट में था, नहीं पॉकेट में तुरंत आप पंचगव्य डालेंगे तो मिल जाएगा कौन से श्लोक में आता है। रूपा जी वहाँ लिखे भी परपट में, एक सर्च कर लेते ना। पंचगव्य, पंचामृत, हाँ ये आ गया चैतन्य चेतामृत मध्य लीला चैप्टर 4 श्लोक नंबर 61। After the first bathing, further bathing were conducted with Panchagavya and then with Panchamrita. रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, श्लोक का नंबर कौन सा रह गया, 61 है ना, मैं निकाल देता हूँ आप लोगों की सुविधा हेतु। चैतन्य चैतन्य मध्य लीला 4.61, ये देखिए। ये जानना चाहिए क्योंकि हमारे फिलोसफी में हम लोग वीगन्स नहीं है एक्चुअली, ये जानना चाहिए कुल मिला करके हम लोग काउ प्रोडक्ट को यूज करते हैं। पंचगव्य पंचामृत स्नान करैया, महास्नान करिला शतघट दिया। After the first bathing, further bathings were conducted with Panchagavya and then with Panchamrita, and Mahasnan was performed with ghee and water, which had been brought in 100 pots. The ingredients of Panchagavya are milk, yogurt, ghee, cow urine, cow dung. All these items come from cow, and therefore we can just imagine how important cow is, since its urine and stool are required for bathing the deity. Panchamrit consists of 5 kinds of nectar: yogurt, milk, ghee, honey, and sugar. सही बताया. The major portion of this preparation also comes from cow. To make it more palatable, sugar and honey are added. इस तरीके से ऐड किया जाता है कि जो चरणामृत बाद में मिलता है वो पीने योग्य हो जाए। तो उसी अनुपात में एक्चुअली डीटी को ऊपर वर्शिप डाला जाता है ना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, मतलब इसका मतलब है कि हनी, शुगर, मिल्क, कर्ड इसकी मात्रा ज्यादा होती है, घी की मात्रा मॉडरेट होती है, ताकि बाद में जो चरणामृत मिले वो पैलेटेबल हो, है ना। इस तरीके से जब मैं सुबह डीटी वर्शिप करने जाता था तो हम अर्चन के लिए तैयार करते थे। अर्चन के समय ये लगता है पंचामृत। तो सबसे पहले उसका भी एक तरीका होता है बनाने का। जैसे सबसे पहले एक पॉट में शुगर लिया जाता है, शुगर में थोड़ा सा घी डाला जाता है और उसको अच्छे से फेंट लिया जाता है। तो शुगर और जब घी को मिलाते हैं तो फिर घी जो है ना ऊपर ऊपर तैरता नहीं है, फिर वो बहुत अच्छे से मिक्स होता है। फिर उसके बाद उसमें दही डाला जाता है और दही दही अच्छे से फेंट लिया जाता, नहीं सॉरी, पहले शुगर डाला जाता है, फिर उसमें घी डाला जाता है, फिर अच्छे से उसको फेंट लिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें हनी डाला जाता है, तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये पहले अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसके बाद अगर आप उसमें कर्ड डालेंगे और फिर अच्छे से फेंट लेंगे, फिर मिल्क डालेंगे, तो वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। और अगर आप उसको टाइमली नहीं डाल के सही से फेंटेंगे नहीं, तो फिर वो ऊपर ऊपर तैरेगा, फिर आप घी ऊपर ऊपर तैरता है ना। तो वो उतना दिखने में भी सुंदर नहीं होता है और बाद में चढ़ना में तो उतना पैलेटेबल भी नहीं होता है। तो प्रोपा जी यहाँ लिख रहे हैं, टू मेक इट मोर पैलेटेबल शुगर एंड हनी आर एडेड। उसको डालने का एक तरीका होता है। जब आप ऑल्टर में जाते हैं तो ये सिखाया जाता है किस तरीके से उसको बनाना चाहिए जिससे वो दिखने में भी अच्छा लगे। इट शुड लुक होमोजीनियस, एक ब्राउनिश सा, मतलब क्रीमिश सा, मतलब ये बन जाता है, लिक्विड होता है ना, क्रीमिश लिक्विड होता है।
लेकिन उसके ऊपर हनी, मतलब घी तैरता हुआ नहीं दिखेगा, घी उसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। उससे भगवान को कभी कभी उसमें रोज वाटर भी डाल दिया जाता है जस्ट फॉर फ्लेवर। इस तरीके से उससे भगवान को उससे मतलब हर दिन ये किया जाता है, मतलब अभिषेक किया जाता है, और फिर वही चरणामृत के रूप में भक्तों को दिया जाता है। तो इसको कहते हैं पंचगव्य एंड पंचामृत। यस सर, आगे बढ़ सकते हैं। पढ़िए। Although Sri Gopal ate everything offered, still by the touch of his transcendental hand, everything remained as before. How Gopal ate everything while the food remained the same was transcendentally perceived by Madhavendra Puri Goswami. Nothing remains a secret to the devotee of the Lord. The wonderful festival and installation of Sri Gopalji was arranged in one day. Certainly, all this was accomplished by the potency of Gopal. No one but a devotee can understand this. Madhavendra Puri offered water to Gopal for washing his mouth, and he gave him betel nuts to chew. Then, while Arati was performed, all the people chanted, Jai, Jai, all glories to Gopal. Arranging for the Lord's rest, Sri Madhavendra Puri brought a new cot, and over this he spread a new bedspread and thus made the bed ready. A temporary temple was constructed by covering the bed all around with a straw mattress. Thus, there was a bed and a straw mattress to cover it. After the Lord was laid down to rest on the bed, Madhavendra Puri gathered all the Brahmanas who had prepared the prasadam and said to them, Now feed everyone sumptuously from the children on up to the aged. All the people gathered there sat down to honor the prasadam, and by by they took food. All the Brahmanas and their wives were fed first. Those who took prasadam included not only the people of Govardhan village, but also those who came from other villages. They also saw the deity of Gopal and were offered prasadam to eat. Seeing the influence of Madhavendra Puri, all the people gathered there were struck with wonder. They saw that the Annakutta ceremony, which had been performed before during the time of Krishna, was now taking place again by the mercy of Sri Madhavendra Puri. All the Brahmanas present on the occasion were initiated by Madhavendra Puri into the Vaishnava cult, and Madhavendra Puri engaged them in different type of service. After taking rest, the deity must be awakened at the end of the day, and immediately some food and some water must be offered to him. When it was advertised throughout the country that Lord Gopal had appeared atop Govardhan Hill, all the people from neighboring villages came to see the deity. One village after another was pleased to beg Madhavendra Puri to allot them one day to perform the Annakutta ceremony. Thus, day after day, the Annakutta ceremony was performed for some time. Sri Madhavendra Puri did not eat anything throughout the day, but at night, after laying the deity down to rest, he took a milk preparation. The next morning, the rendering of service to the deity began again, and people from one village arrived with all kind of food grains. The inhabitants of the village brought to the deity of Gopal as much food grains, ghee, yogurt, and milk as they had in their village. The next day, almost as before, there was an Annakutta ceremony. All the Brahmanas prepared foods and Gopal accepted them. The ideal place to execute Krishna consciousness is Brajabhumi or Vrindavan, where the people are naturally inclined to love Krishna and Krishna is naturally inclined to love them. Throngs of people came from different villages to see the deity of Gopal, and they took Mahaprasadam sumptuously. When they saw the super excellent form of Lord Gopal, all their lamentation and unhappiness disappeared. All the villages in neighboring Brajabhumi, which is Vrindavan, became aware of the appearance of Gopal, and all the people from these villages came to see him. Day after day, they all performed the Annakutta ceremony. In this way, not only the neighboring villages but all the other provinces come to know of Gopala's appearance.
Thus, people came from all over, bringing a variety of presentations. The people of Mathura, who are very big capitalists, also brought various presentations and offered them before the deity in devotional service. Thus, countless presentations of gold, silver, garments, scented articles, and eatables arrived. The store of Gopal increased daily. One very rich Kshatriya of the royal order constructed a temple. Someone made cooking utensils, and someone constructed boundary walls. Each and every family residing in the land of Brajabhumi contributed one cow. In this way, thousands of cows became the property of Gopal. Eventually, true Brahmanas in the renounced order arrived from Bengal, and Madhavendra Puri, who liked them very much, kept them in Vrindavan and gave them all kinds of comfort. These two were then initiated by Madhavendra Puri, and he entrusted them with the daily service of the Lord. This service was performed continuously, and the worship of the deity became very gorgeous. Thus, Madhavendra Puri was very pleased. In this way, the deity worship in the temple was very gorgeously performed for 2 years. Then one day, Madhavendra Puri had a dream. In his dream, Madhavendra Puri saw Gopal, who said, "My bodily temperature still has not decreased. Please bring sandalwood from the Malay province and smear the pulp over my body to cool me. Bring sandalwood pulp from Jagannath Puri. Kindly go quickly. Since no one else can do it, you must." After having this dream, Madhavendra Puri Goswami became very glad due to ecstasy of love of Godhead, and in order to execute the command of the Lord, he started east toward Bengal. Before leaving, Madhavendra Puri made all arrangements for regular deity worship, and he engaged different people in various duties. Then, taking up the order of Gopal, he started for Bengal. When Madhavendra Puri arrived at the house of Advaita Acharya in Santipura, the Acharya became very pleased upon seeing the ecstatic love of Godhead manifest in Madhavendra Puri. Hare Krishna. So, after having this dream, Madhavendra Puri Goswami became very glad due to ecstasy of love of Godhead, and in order to execute the command of the Lord, he started toward Bengal. And before leaving Madhavendra Puri, made all arrangements for regular deity worship, and he engaged different people in various duties. Then, taking up the order of Gopal, he started for Bengal. When Madhavendra Puri arrived at the house of Advaita Acharya Shantipur, Advaita Acharya very pleased upon seeing the ecstatic love of Godhead manifest in Madhavendra. तो माधवेंद्रपुरी शांतिपुर गए. कहाँ से गए? अभी वृंदावन से बंगाल की ओर, और बंगाल से निकलेंगे वो उड़ीसा की ओर, क्योंकि उस समय उड़ीसा में मिलता था चंदन. तो वही रूट पे आज भी ट्रेन चलती है. और अभी शांतिपुर में वो अद्वैत आचार्य से मिले, है ना. यस. Advaita Acharya begged to be initiated by Madhavendra Puri. After initiating him, Madhavendra Puri started for South India. Going into South India, Sri Madhavendra Puri visited Remuna. साउथ इंडिया where मतलब पर्टिकुलरली मीन साउथ में ट्रेवल किए. साउथ इंडिया नहीं गए एग्जैक्टली, साउथ की ओर चले. वहां से शांतिपुर से साउथ की ओर यानी उड़ीसा की ओर आए. visited Remuna, where Gopinath is situated. Upon seeing the beauty of the deity, Madhavendra Puri was overwhelmed. In the corridor of the temple from which people generally viewed the deity, Madhavendra Puri chanted and danced. Then he sat down there and asked a Brahmana what kinds of foods they offered to the deity. From the excellence of the arrangements, Madhavendra Puri understood by deduction that only the best food was offered. Madhavendra Puri thought, ये ये जो डीटी है, क्षीरचोरा गोपीनाथ डीटी, इनके पीछे पीछे की हिस्ट्री किसी को पता है क्या? क्षीरचोरा गोपीनाथ की डीटी यानी गोपीनाथ जी की डीटी की हिस्ट्री किसी को पता है क्या? डीटी का दर्शन तो रामचंद्र भगवान जी ने शायद बनाया था यस सीता माता के. यस. ये देखिए, ये है, मैं आप लोगों को आपको दिखाता हूँ. क्षीरचोरा नाथ. तो कभी भी ये
तो मदन मोहन जी, बीच में गोपीनाथ जी, लास्ट में गोविंद गोविंद देव जी, गोविंद जी, गोविंद जी, गोविंद जी और जू एक ही होता है एक्चुअली। तो ये है ना, तो ये जो पर्टिकुलरली मंगल आरती दर्शन अगर आप लोग करा पाऊं मैं, मंगल आरती दर्शन अगर हो पाए, क्यों मंगल आरती दर्शन, क्योंकि उसमें एक विशेषता है आपको। हम्म, इसमें तो समझ नहीं आएगा, जो भी है। तो यहाँ पे ये जो विग्रह है, ये एक्चुअली भगवान रामचंद्र ने स्वयं बनाया था, है ना। कैसे रामचंद्र ने स्वयं बनाया था, जब भगवान रामचंद्र इस दिशा में एक बार ट्रेवल कर रहे थे, तो बहुत सारी गाय एक्चुअली उधर पे घूम रही थी। तो भगवान गायों को देख करके मुस्कुराने लगे। तो सीता माता ने पूछा कि भगवान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या है इसके पीछे राज है। क्योंकि भगवान अगर कभी कुछ मुस्कुराते हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे कुछ बहुत बड़ी कुछ होने वाला है। तो भगवान रामचंद्र ने बताया कि मैं इस प्रकार से जो मेरा नेक्स्ट इनकारनेशन होगा, वो मैं मतलब एक गोपाल की भूमिका अदा करूंगा, मैं गोपाल का रूप लूंगा और गाय चराऊंगा। तो सीता माता बिकेम मोर क्यूरियस, उनकी और जिज्ञासा बढ़ी कि आप मुझे थोड़ा और एलेबरेट करिए कि वो कैसा आपका अवतार होगा, क्या होगा। तो भगवान रामचंद्र ने अपने एक तीर से स्टोन के ऊपर पूरा वो मतलब उकेरा, ये जो गोपीनाथ जी का विग्रह है, तो उसमें आप देखेंगे, ऐसे यहाँ तो नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली, लेकिन दिखाया जाता है वहां पे कि वहाँ छोटे छोटे उनके विग्रह में ही वहां पे छोटे छोटे गाय बनी हुई है, ग्वाल वाल बने हुए हैं, गोपियां बनी हुई है। और इस तरीके से गोपीनाथ जी के विग्रह में ही यहाँ पे इधर पे नीचे नीचे में इस साइड में, तो गोपीनाथ जी बोले मैं इस प्रकार की लीला भविष्य में करूंगा। तो तो ये विग्रह वास्तव में भगवान रामचंद्र ने स्वयं उकेरा है। therefore this विग्रह इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे तीन विग्रह है, मदन मोहन, एक्सट्रीम लेफ्ट में है मदन मोहन, एक्सट्रीम राइट में है गोविंद देव, और बीच में है गोपीनाथ। तो ये गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट विग्रह हैं। ये तीन किन 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 को मतलब मदन मोहन जी किसके विग्रह हैं, गोविंद देव जी किसके विग्रह हैं, और गोपीनाथ जी किसके विग्रह हैं, कोई बता पाएगा? जो संबंध अभिधेय प्रयोज। यस, अगर आप जब देखेंगे संबंध प्रणाम मंत्र जो संबंध प्रणाम मंत्र आप देखेंगे तो आपको संबंध के विग्रह हैं मदन मोहन जी, अभिधेय के विग्रह हैं गोविंद देव जी, और प्रयोजन के विग्रह हैं गोपीनाथ जी। ये संबंध संबंधादिदैव प्रणाम, जयतु सुरतौ पंगोर मम मंद मतेर्गति, मत्सर्वस्व पदाम्बुजौ राधा मदन मोहनौ, जयताम सुरतौ पंगोर। ग्लोरी टू ऑल मर्सीफुल राधा एंड मदन मोहन। हाँ, जयताम पंगुर, मैं क्या हूँ, पंगु हूँ, आई एम लेम एंड इल एडवाइज्ड। मम मंद मतेर गति, और मेरी जो है बुद्धि भी बड़ी मंद है ना। येट दे आर माई डायरेक्टर्स एंड देयर लोटस फीट आर एवरीथिंग टू मी। मत सर्वस्य पदाम्बुजौ, उनके पदम्बुज मेरे लिए सब कुछ है। किनके पदाम्बुज? राधा मदन मोहन, है ना। तो वृंदावन के राधा मदन मोहन जी कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। जो अभी ये कहाँ रहते हैं, कौन बताएगा? वृंदावन से इनको ले जाया गया था, तभी कहाँ रहते हैं ये?
तो जी वो जयपुर में जो हुआ था वही वाला है क्या? नहीं, जयपुर के पास में एक स्थान है, उसका नाम है करौली। करौली में अच्छा। रहते हैं मदन मोहन जी, है ना। जयपुर के पास में एक स्थान है। मदन मोहन का मंदिर वृंदावन में तो आप जानते हैं कौन सा है। मदन मोहन टेम्पल, वृंदावन, ये मदन मोहन जी का मंदिर है। ठीक है, ये वाला मंदिर मदन मोहन जी का है। लेकिन अभी मदन मोहन जी को कहाँ ले जाया गया है? करौली, जयपुर, मदन मोहन। तो ये करौली में अभी मदन मोहन जी को ले जाया गया है। प्रभु जी मतलब वहां पे मदन मोहन जी को ही मतलब सेंटर पे रख के पूरा सिटी। नहीं, वो नेक्स्ट है। वो गोविंद देव जी हैं, ये आगे। ये है गोविंद देव जी, जिनका सेंटर में रख के पूरी जयपुर की सिटी बनी है। दिव्याद बृंदारण्य कल्पद्रुमदा श्रीमद रत्नांगरा सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा शील गोविंद देवौ प्रेष्ठलिभि सेव्यमानौ स्मरामि। In the temple of jewels in Vrindavan, underneath a desire tree, Shri Shri Radha Govind, served by their most confidential associates, set upon effulgent throne. My most humble obeisances unto them. तो ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है, गोविंद देव जयपुर, तो वो ये इस प्रकार से दिखता है वो मंदिर। और गोविंद देव जी इस प्रकार से रहते हैं, है ना। ये इनके इर्द गिर्द पूरी सिटी बसाई गई है। और गोविंद देव जी वृंदावन में कैसा है? तो ये है गोविंद देव जी का टेम्पल। ये टेम्पल इसकी 7 माला ऊंचा हुआ करता था। तो आगरा से दिखता था, जब यहाँ दिए जलते थे तो आगरा से दिखाई देते थे। तब औरंगजेब ने कहा कि कौन कहाँ से दिया दिखाई दे रहे हैं। बोले एक मंदिर है वृंदावन में, बहुत ऊंचा मंदिर है, तो उसको तोड़वा दिया गया। तो अभी भी एलियन ऐसा दिखता है ना। बहुत ही भव्य मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, है ना। ओ, ओ, ये इस तरीके से गीत है ना। राध इसको कहते हैं हरे राधा कृष्ण गीति। मैं आपको दिखाता हूँ, राधा कृष्ण गीति। ये जो गीत है इसमें सभी वृंदावन के मंदिरों को, मतलब वृंदावन के विग्रह को और उनके आ, मैं कौन सा वाला लगाऊं ये पता नहीं चल रहा हूँ, एक लगाते हैं। उसमें भगवान, जिन आराध्य भगवान कौन है उनके, और उनके आराध्य आचार्य कौन है, उनका वर्णन है। जय राधा माधव माधव जय जो राधा माधव माधव जय जो राधा माधव माधव जय जो राधा माधव माधव जयो देव प्राण धन जय देव प्राण धन। श्रीपाद जयदेव गोस्वामी के विग्रह का नाम क्या है?
राधा माधव। राधा माधव। अभी राधा माधव कहाँ रहते हैं? अभी ये राधा माधव कहाँ रहते हैं? तो राधा दामोदर टेम्पल वृंदावन में, जहाँ प्रभुपाद जी बैठ के रूप गोस्वामी की समाधि के सामने प्रार्थना किया करते थे। राधा दामोदर मंदिर जीव गोस्वामी के आराध्य राधा दामोदर का है, लेकिन वहीं पे उनके पास में अभी हम यहाँ देखते हैं कि वहां पे किस किस के विग्रह रहते हैं। श्री गिरिराज चरण, ये वो गिरिराज चरण शिला है जो भगवान कृष्ण ने स्वयं सनातन गोस्वामी को दी थी। श्रील रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी की समाधि है। श्रील प्रभुपाद जी की भजन कुटीर है। ये सब राधा दामोदर मंदिर में है, ठीक है। और ये जो विग्रह है यहाँ पे, इसमें मैं इनका नाम यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, अगर दिख जाएगा तो एक बीच में है राधा दामोदर, एक साइड में है राधा माधव। जयदेव गोस्वामी के विग्रह भी यहीं पे रखे गए हैं। वो एक, और ये दामोदर, ये जो चरण शिला है जहाँ भगवान कृष्ण की चरण वाली शिला, जो हाँ सनातन गोस्वामी को दी गई थी, है ना, इस तरीके से। और ये 3 विग्रह हैं यहाँ पे। अब कौन से हैं मैं नाम यहाँ नहीं खोज पा रहा हूँ। एनीवे जैसे ही मिलता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उनका तीनों का विग्रह यहाँ पे है। तो ये जो राधा माधव है वो यहीं पे रखे गए हैं। जयो राधा माधव राधा माधव राधे जयो राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे शील चेतना तेर प्राण धन है शील चेतना तेर प्राण धन है। ये सीतानाथ कौन है? सीतानाथ है प्राणधन है राधा मदन गोपाल। कौन है सीतानाथ? अद्वैत आचार्य। हाँ अद्वैत आचार्य, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम है सीता ठाकुरानी, है ना। तो इसलिए सीतानाथ है प्राणधन, सीतानाथ जी के प्राणधन है मदन गोपाल जी। इनका भी मंदिर है मदन गोपाल जी का, जहां पे मदन गोपाल मंदिर के प्रांगण में मदन मोहन जी का विग्रह प्राप्त हुआ था, और उन्हीं की परमिशन लेकर के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कृष्ण चैतन्य चरितामृत लिखना शुरू करी थी। जब हम वृंदावन में जाएंगे ये सब दर्शनीय स्थलों में हम दर्शन करेंगे, है ना। राधा मदन गोपाल टेम्पल वृंदावन, ना। अभी याद रखिए वृंदावन जाने से पहले ये जो परम पूज्य वृंदावन जाने से पहले जब हमारा ये आचार्य सीरीज खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग ये परम पूज्य लोकनाथ महाराज की जो बुक है ब्रजमंडल परिक्रमा, इसको पूरा पढ़ करके वृंदावन जाएंगे, ताकि वहां जाएंगे तो हमको वैसे कुछ पता रहेगा। नहीं तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे तो बस हाँ। तो ये मदन मोहन मंदिर है। मदन मोहन मंदिर के पास में एक पेड़ के नीचे मदन गोपाल जी का विग्रह मिला था। अब वो बहुत फेमस नहीं है, इसलिए शायद फोटो नहीं मिल रहा है। तो हाँ ये शायद इधर ही है मदन गोपाल मंदिर, ये देख सकते हैं। ये बिल्कुल मदन मोहन जी के पास में है। अब जाएंगे तो आपको दर्शन कराए जाएंगे। तो मदन गोपाल जी का, हाँ यही है मदन गोपाल जी का विग्रह है वहां पे। और वो स्थान आज भी है जहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चैतामृत को लिखना शुरू किया था। तो इस तरीके से यदि राधा कृष्ण गीति में सभी आचार्यों के गीत हैं, मतलब आचार्यों के विग्रहों के नाम है ना।
तो इस तरीके से। और तो गोविंद देव जी किनके किनके विग्रह हैं? गोविंद देव जी किनके विग्रह हैं? रूप गोस्वामी। किसके हैं? रूप गोस्वामी के, यस। और मदन मोहन जी किसके विग्रह हैं? सनातन गोस्वामी के। और गोपीनाथ जी किसके विग्रह हैं? मतलब जो गोपीनाथ जी ये वृंदावन में है, ये किसके विग्रह हैं? कौन बताएगा? गोपीनाथ जी किसके विग्रह हैं? तुरंत देख सकते हैं यहाँ पे। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, मधु पंडितेर प्राण धन है। मधु पंडित जी के ये विग्रह हैं। राधा रमन किसके विग्रह हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी के। राधा विनोद किसके विग्रह हैं? लोकनाथ गोस्वामी के। ये कहाँ पे हैं? ये जयपुर में है। पूरा जयपुर के मेन मार्केट में है। हमारा सौभाग्य होता है, छोटे से विग्रह है, उनका दर्शन करके आए। राधा गोकुलानंद विश्वनाथ, राधा गिरिधारी दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, राधा श्याम सुंदर श्यामानंद प्रभु, बांके बिहारी हरिदास हरिदास। ये हरिदास ठाकुर अलग हैं, ये वृंदावन वाले हरिदास हैं। राधाकांत वृकेश्वर पंडित जो 72 आवर्स तक डांस करते थे। और गंधर्वी का गिरिधारी शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विग्रह हैं। आप में से किसी ने देखा है गंधर्वी का गिरिधारी को? यस प्रभु। कहाँ है ये? जगन्नाथपुरी। हैं? नहीं, नहीं प्रभु जी। ये मायापुर में गंधर्वी का गिरिधारी। ये शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विग्रह हैं। और यकीन मानिए ये ऐसे दिखते हैं जैसे मतलब किसी मनुष्य के ऊपर से काला पेंट कर दिया हो। बिल्कुल आप यकीन लगेगा ही नहीं कि विग्रह है। ये देखिए जहाँ मेरा एरो है, तो लगेगा ही नहीं, बड़ा सा इनका चेहरा है और पूरा फुल, बहुत सुंदर विग्रह है। आज तक जितने विग्रह मैंने देखे हैं, मुझे सबसे मतलब आकर्षक लगे हैं गंधर्वी का गिरधारी के विग्रह। बहुत आकर्षक है। मतलब ये मतलब मेरा सबका अपना अपना हो सकता है पर्सनल, है ना, इस तरीके से। यस। प्रभु जी जगन्नाथपुरी में है वो कौन है फिर? कौन? जो वो पूरी जाते हैं वो वहाँ पे गौड़िया मठ में कुछ ऐसा बताते हैं, मुझे शिल कुछ भक्ति कंफ्यूजन है। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मायापुर के चैतन्य गौड़ी मठ में स्थापित किए हैं। और उनके आज चार संप्रदाय के आचार्यों को स्थापित किया है ना। ये और गोपीनाथ जी किसके विग्रह हैं? तो ये हैं संबंध अभिदय प्रयोजन, प्रयोजन विग्रह हैं। श्रीमन रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु स्वर्णेर गोपीर गोपीनाथ शिरस्तुना, ये उनका प्रणाम मंत्र है। तो गोपीनाथ जी यहाँ पे जो तीन विग्रह हमने देखे, जो खीरचोरा गोपीनाथ के तीन विग्रह हैं, वो तीन संबंध अभिदय और प्रयोजन के विग्रह हैं। इसमें गोपीनाथ जी बीच में है और इस डीटी को साक्षात भगवान रामचंद्र ने अपने हाथों से बनाया था सीता माता की प्रसन्नता के लिए। ठीक है। तो बहुत लंबा है, लेकिन मेरी एक दूसरी सेशन क्लास भी है। अभी तक जो हमने पढ़ा सुना, इससे संबंधित किसी के मन में कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु। प्रभु जी वो मतलब इनसे कब मिले मध्वाचार्य जी से? मध्वाचार्य से कौन? माधवेंद्रपुरी। नहीं नहीं, वो नहीं मिले। बीच के बहुत सारे आचार्य हैं, उनका नाम यहाँ नहीं दिया गया। अच्छा। भगवत गीता के आप इंट्रोडक्शन में देखिए, बहुत सारे लक्ष्मी नरहरि लक्ष्मीपति
इत्यादि बहुत सारे आचार्य, उनका नाम यहाँ नहीं दिया गया, उसको डायरेक्टली माधवेंद्रपुरी को बताया गया है। तो माधवेंद्रपुरी कैसे मतलब मध्व संप्रदाय में जुड़े, तो ये एक्चुअली सब्जेक्टेड टू होमवर्क है ना, यहाँ पे लिखा गया है जो अपन हम अगले सप्ताह पढ़ने वाले हैं। श्रीला भक्ति ठाकुर रिमार्क up to that advent of His Holiness Sripad Lakshmipati Tirtha, it was system the disciplic succession of Madhvacharya to worship Lord Krishna alone. After Srila Madhavenpuri, worship of Radha and Krishna was established. है ना? For this reason, Madhavenpuri is accepted the root worship of ecstatic love. ये सब चीजें, ये सब कॉन्टेक्स्ट अभी हम आगे सप्ताह पढ़ेंगे कि कैसे माधवेंद्रपुरी मध्वाचार्य की परंपरा में जुड़े। और यद्यपि मध्वाचार्य की परंपरा में तो केवल कृष्ण की उपासना की जाती है, तो राधा कृष्ण की जुगल उपासना की शुरुआत अगर इस संसार में किसी ने करी है तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने करी है, और इसलिए वो कृष्ण प्रेम की रूट्स कहे जाते हैं, है ना। वहां से कृष्ण प्रेम का एक्चुअली मतलब उसके रूट्स के बाद में ट्रंक है ईश्वरपुरी और फ्रूट्स हैं चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार से बताया गया है। तो ये हम अगले सप्ताह में इसको और थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अभी हमने जस्ट एक माधवेंद्रपुरी की बेसिक स्टोरीज और गिरिजा गोपीनाथ की बेसिक स्टोरीज चर्चा करी। निखिलेश प्रभु कुछ कह रहे हैं? यस प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी एक और वो जिज्ञासा मुझे था कि प्रभु जी जो हमारे संप्रदाय के जो कुछ ऐसे हुआ है कि मतलब जो ठाकुर जी हैं वो मतलब अभी दूसरे संप्रदायों के द्वारा जैसे रुद्र संप्रदाय के द्वारा पूजित है, मतलब हाँ, तो उसकी ये क्या इसके स्टोरी ऊपर है प्रभु जी? हम लोग का एक IFIC मीटिंग हुआ था नाथ द्वारा में, जो परम पूज्य भक्ति वैष्णव आश्रय महाराज क्लास दिए थे। जी जी इस प्रकार से श्रीनाथ जी का विग्रह मतलब हमारे संप्रदाय से मतलब चल आगे जाकर के वो वल्लभाचार्य के पास में और वल्लभाचार्य के पुत्रों के पास से फिर उनकी परंपरा में चला गया, है ना। तो ये मैं अगले सप्ताह में इसको भी क्लियर करूंगा, दोनों चीजें मैं क्लियर करूंगा कि माधवेंद्रपुरी के परंपरा, माधवेंद्रपुरी कैसे गौड़ी मतलब मध्व परंपरा में आए, और दूसरा कैसे जो डीटीज हैं वो वल्लभाचार्य के पास चले गए। एक्चुअली वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु तो फ्रेंड्स थे, हम ये जानते ही हैं। आज भी आप प्रयाग जाएंगे तो वो स्थान अड़ीला ग्राम है जहाँ पे जब वो जमुना पार करके चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे और रास्ते में बिल्कुल वो भावावेश हो गए थे, और फिर उनको वल्लभाचार्य जी अपने घर पे ले गए थे। वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जी और एक और। फिर उनके उन लोगों को सौंपा गया था ये डीटीज का सेवा करने का भार। और फिर क्योंकि एज यूजुअल जो मुगल्स का आक्रमण हुआ था तो उस समय डीटी कई बार नीचे आई, ध्यान रखिएगा। श्रीनाथ जी का विग्रह चैतन्य चरितमृत में कम से कम 2 बार लिखा गया है। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई किसका दर्शन करने की? भगवान श्रीनाथ जी का दर्शन करने की, गोपाल का दर्शन करने की। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु तो गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं है। अब ध्यान है कि माधवेंद्रपुरी गोवर्धन के ऊपर स्थापित किए हैं, चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर चढ़े नहीं, ये कह करके कि ये साक्षात भगवान का ही शरीर है, और इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हुए गोवर्धन के ऊपर पैर नहीं रखते। लेकिन अब भगवान की इच्छा भी है गोपाल का दर्शन करने की। तो फिर मुगल के आक्रमण का बहाना बना करके ऐसी अफवाह फैल गई कि मुगलों ने आक्रमण किया और मतलब गोपाल को बचाने हेतु ब्रजवासियों ने उनको छुपा लिया, मतलब वहां से उतार करके एक गांव में ले आए। आज भी आज जब ब्रज में जाएंगे तो ये बुक में हम पढ़ेंगे, मैं वो सारे प्रसंग हम इसको सुनेंगे। वो गांव आज भी है जहाँ कुछ समय के लिए गोपीनाथ जी को गोपाल जी को नीचे लाया गया था, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनका दर्शन किया था, फिर उनको ऊपर ले गए थे, फिर एक बार नीचे उतारे थे, ऐसे 2-3 बार ऊपर नीचे हुआ। और उसके बाद में फिर फाइनली एक शकट में रख के, शकट मतलब समझते हैं जो बैलगाड़ी में रख करके उनको राजस्थान लाया गया, क्योंकि उस समय मुगलों का आक्रमण बहुत बढ़ गया था, है ना। और फिर उसके बाद में बड़े धूमधाम से उनको नाथ द्वारा में उनको रखा गया, उनकी सेवा पूजा की गई। क्योंकि माधवेंद्रपुरी तो वापस गए नहीं ना, जब गोपीनाथ जी को मतलब गोपाल जी के लिए चंदन लेने आए, लेकिन उतनी वृद्धावस्था भी उनकी बढ़ गई थी, तो भगवान बोले कि देखो माधवेंद्र, तुम गोपीनाथ के ही शरीर में चंदन लगा दो तो चंदन मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बाद कभी वापस गए नहीं माधवेंद्रपुरी। तो फिर वहां पे सेवा पूजा परंपरा चलती रही, और उसके बाद में वल्लभाचार्य जी ने उस सेवा को स्वीकार किया और उनके पुत्र फिर उन सेवा को स्वीकार किया। और उसके बाद में फिर वो मुगलों के अटैक को देखते हुए
उनको राजस्थान लेके आए, जैसे कि अन्य विग्रहों को भी लेके आए। तो कई 3-4 विग्रह तो अपन जानते हैं, जैसे मैंने बताया लोकनाथ गोस्वामी का जो विग्रह है राधा विनोद, हाँ विनोद ही है ना, तो उनको लाया गया, मतलब वो राजस्थान में रखा गया, आज भी वहां पे हैं। उसके बाद में मदन मोहन जी को लाया गया, गोपीनाथ जी, ये सॉरी हमारे गोविंद देव जी को लाया गया, श्रीनाथ जी को लाया गया इत्यादि। तो वो इतिहास थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग उसको अगले सप्ताह में पढ़ेंगे। ठीक है निखिलेश प्रभु? ओके ठीक है। थैंक यू हरे थैंक कृष्णा, यू। धन्यवाद। शिल प्रभुपाद जी की जय। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जय।